Praise Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। I hope you all are doing good. मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं And I believe that you all are enjoying the Word of God every morning. और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक दिन आप परमेश्वर के वचन का आनंद ले रहे हैं। I thank God because He has given us this beautiful opportunity to spend time with Him. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनके साथ एक अच्छा समय बिता सके। And this is only grace और ये सच में सिर्फ अनुग्रह ही है that we all are alive and enjoying the Word of God and enjoying the presence of God. कि हम सब जीवित हैं और हम उस परमेश्वर के वचन का आनंद ले पा रहे हैं। Today, we will meditate on very wonderful word. और आज के दिन हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर मनन करने जा रहे हैं। That's God's love is, or we can say like that, God's care is beyond our expectation. आज का विषय है कि परमेश्वर का जो संभालना है, परमेश्वर का जो प्रेम है, वो हमारी हमारी उम्मीद से कई ज्यादा होता है। And today we will read from the word Matthew chapter 8, verse 1 to 3. और आज हम मत्ती इसका 8वां अध्याय और पहली, दूसरी और तीसरी आयत से पढ़ेंगे। Matthew chapter 8, verse 1 to verse 3. मत्ती इसका 8वां अध्याय, इसकी पहली और इसकी तीसरी आयत। First, I'll read it in English, then Vaishnavi can read it in Hindi. पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर वैष्णवी हिंदी में आपको पढ़ के बताएगी। And it says like that, when he had, means Jesus, when he had come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। We all know the condition of a patient of leprosy, that nobody wants to talk to them. Even these days also nobody wants to talk to them and touch them. हम सब उन कोढ़ से रोगी व्यक्तियों की स्थिति को जानते हैं कि उनसे कोई बात करना तक पसंद नहीं करता, उनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। But in old days the condition was very poor, लेकिन बीते दिनों में, पुराने दिनों में उनकी स्थिति और भी खराब होती थी, because they used to live in a different place, uh, and at the age of the village they used to live there. क्योंकि उन्हें गांव से बाहर रखा जाता था, उन्हें एक अलग जगह पे रखा जाता था। And Bible says that when Jesus came down from the mountain, और बाइबल कहती है कि जब यीशु पहाड़ से उतरा so a great multitude was following Jesus. तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को पीछा कर रही थी, यीशु मसीह के पीछे चल दी। Everybody wanted to touch him. और हर कोई यीशु मसीह को छूना चाहता था। Everybody wanted that Jesus should come to their house. हर एक व्यक्ति चाहता था कि यीशु उनके घर में आए। Everybody wanted that uh, Jesus should talk to me personally. हर एक व्यक्ति चाह रहा होगा कि यीशु मसीह मुझसे बात करे, But व्यक्तिगत रूप से। Bible says that there was a man who was a leper, and he came to Jesus and worshipped him. पर बाइबल बताती है कि एक कोढ़ से रोगी व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु के पास आके उनकी आराधना करने लग गया। But here one main and important line is written, which I think
we all have not observed yet. पर यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है जिस पर शायद हमारा ध्यान नहीं गया है। Bible says that then Jesus put out his hand and touched him. बाइबल बताती है कि यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। And after that it says like that, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. और बाइबल बताती है कि उसके बाद यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। So one thing is very important to notice here. तो एक बात पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। Before healing that person, Jesus touched him. उस व्यक्ति को चंगा करने से पहले यीशु ने उसको छुआ। He didn't heal him yet, but before healing, Jesus touched that person who had a physical problem of leprosy. यीशु ने उस कोढ़ के रोगी को, जिसे एक शारीरिक रोग था, उसे चंगा करने से पहले उसको छुआ। Before healing him physically, Jesus healed him emotionally. इससे पहले कि यीशु उसे शारीरिक रूप से चंगा करते, पहले यीशु ने उसे मानसिक रूप से चंगा किया। Because he was a person uh, to whom nobody wanted to touch him. क्योंकि वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई छूना नहीं चाहता था। So when other people used to talk to him, they used to stay away from him and they didn't wanted to touch him. तो जब कोई भी व्यक्ति उस कोढ़ रोगी व्यक्ति से बात करता था, तो वे दूर से बात करते थे, कोई उसके पास तक नहीं आना चाहता था। So he was a person who was expecting that somebody should touch me, somebody should talk to me, somebody should lay his hand upon my shoulder, and somebody should touch me. वो कोढ़ का जो रोगी था, वो उम्मीद करता होगा कि कोई तो मुझे छुए, कोई तो मुझसे बात करे, कोई तो मुझे संभाले। Because when there was a COVID season, we all must have experienced that if you were isolated, so everybody used to stay away from you. और अभी बीते समय में, कोरोना के समय में, हमने इस चीज को देखा है कि अगर आप अकेले रह रहे हो, अलग रह रहे हो, तो कोई आपको छूता नहीं होगा, कोई सब आपसे दूरी बना के रखते होंगे। If you are a positive person, nobody wanted to touch you. और अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आया है, तो कोई आपको छूना भी नहीं चाहता होगा। So when I was isolated, when I got positive, and I was isolated in a room. और जब मुझे कोविड हुआ और मेरा पॉजिटिव आया, तो मैं एक अकेले कमरे में रह रहा था। I told my mother, my wife, don't enter in this room and give food from outside only. और मैंने अपनी माँ और अपनी पत्नी से कहा कि मेरे कमरे में ना आए और मुझे खाना बाहर से ही देकर चले जाएं। But that feeling that they are not coming into my room and they are giving food from outside, it was very different feeling. पर वो समय बहुत अलग था, जहाँ पे मेरा परिवार मेरे घर के अंदर, मेरे कमरे के अंदर नहीं आ पा रहा था, और वो बहुत दर्दनाक था। See, if anybody is sick and having this kind of problem, and people are not willing to touch them, they will have different emotional feeling. देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होता है कि जहाँ लोग उसे छूना नहीं चाहते या नहीं छू सकते, तो उस व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। And the same feeling this man had. और वैसा ही कुछ इस व्यक्ति के साथ था। But you know that before healing this person, Bible says Jesus touched him. और बाइबल बताती है कि इस कोढ़ से रोगी व्यक्ति को चंगा करने से पहले यीशु ने उसको छुआ। We all know that he wanted to have healing, that physical healing. और हम सब जानते हैं कि उस व्यक्ति को शारीरिक चंगाई चाहिए थी। And everybody is seeing that this person has a problem, he needs a physical healing.
और हर एक लोग देख रहे थे कि इस व्यक्ति को कोढ़ है और इसे शारीरिक चंगाई चाहिए है। But Jesus knew beyond it. पर यीशु ने तो कुछ और ही देखा। But Jesus knew beyond this, और यीशु ने उससे बढ़कर उस कोढ़ के रोगी को देखा। because Jesus knew that he need the touch of God's hand. यीशु समझ गए कि उस कोढ़ से रोगी व्यक्ति को परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखना है। This morning, I want to tell you something very important. और आज की सुबह में मैं आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूँ। Maybe there are so many things which is visible on your face and your body. ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके चेहरे पे, आपके शरीर पर दिखती होंगी। There might be so many problems which is visible now. और ऐसी बहुत सारी समस्या आपके चेहरे से, आपके शरीर से दिखती होंगी। And everybody in the family and relatives and church, they can see that problem. और हर एक व्यक्ति जो आपके परिवार में है, आपकी कलीसिया में है, वो आपकी उस समस्या को देख सकता है। There are so many prayer requests which you are asking people to pray for. There are so many visible prayer requests are there. और ऐसी बहुत सारी प्रार्थना के विषय आप लोगों को देते हैं और वो प्रार्थना के विषय आपके जीवन से दिखते भी होंगे। But this morning I am talking about those prayer requests which is not spoken yet. पर आज की सुबह में मैं उन प्रार्थना विषय के बारे में कहना चाहता हूँ जिनके बारे में आपने बखान किया ही नहीं है। Amen. आमीन। There are so many prayer requests which is in your heart and you are not willing to speak it out. और ऐसे बहुत सारे प्रार्थना के विषय जो आपके मन के अंदर छुपे हुए हैं और आप उनसे बोल नहीं पा रहे हैं। But God's care is beyond our imagination. पर परमेश्वर का जो संभालना है, परमेश्वर का जो प्यार है, वो हमारी आशा से बहुत परे है, बहुत ऊपर है। Today I want to encourage you and tell you that there are those prayer requests which you have not shared with anybody. God is healing that emotion and that particular feeling. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो प्रार्थना के विषय जो आपने किसी के साथ नहीं बांटे हैं, परमेश्वर उनको अच्छा करना चाहता है, परमेश्वर उनको पूरा करने जा रहा है। God wanna heal you beyond your expectation. और परमेश्वर आपको आपकी उम्मीद से परे आपको चंगा करना चाहता है। And this is the first thing I want to tell you. And this morning I want you to learn this, that Jesus take care for your inner healing also. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली बात कि यीशु मसीह आपके आंतरिक चंगाई को भी करना चाहते हैं। But the second and important thing we need to learn is, और जो दूसरी बात जो हमें समझने की जरूरत है, being a Christian, how we need to behave एक मसीह होने के नाते हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। when we say that Christ live in our life. और जब हम कहते हैं कि मसीह हमारे जीवन में है, there are so many people, those who has problem and which is visible to us. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समस्याएं हैं और उनकी समस्या हमें दिखती हैं। But there are so many problems, those who are not visible yet. पर ऐसी बहुत सारी समस्याएं और भी हैं जो हमें दिखती नहीं हैं। What we need to do is, तब हमें क्या करने की जरूरत है? we need to show that extra care like Jesus. तब हमें उन्हें यीशु के जैसे संभालने की जरूरत है। If there is somebody who is having that physical problem and nobody is willing to touch them, you need to go and touch them and care them first. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ऐसे कोई शारीरिक रोग है और उसे कोई नहीं छूना चाहता, तो आपको जाके उसे वो प्रेम देना है, उसे संभालना और उसे छूना है यीशु के जैसे। Maybe he will get healed after 1 month or 2 months, but when you will touch him, he will get healed emotionally. हो सकता है वो 1 या 2 महीने बाद चंगा हो, लेकिन जब आप उसे प्रेम से छुएंगे, वो अपने मानसिक रूप से चंगा हो जाएगा। There may be so many people around you
those who are broken emotionally. आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, Those who are literally broken in the family and relationship and every part of their life. और वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में, परिवार में, हर एक क्षेत्रों में टूटे हुए हैं। What you need to do is just go to them, talk to them, touch them, and be a Jesus for them. तो आपको क्या करना है? आपको उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है, उन्हें प्रेम करना, उन्हें छूना है और उनके लिए यीशु के जैसा बन जाना है। And this is very, very simple. और ये बहुत बहुत आसान है। Maybe you will pray and he will not heal. It's okay. हो सकता है आप प्रार्थना करें और वो चंगा ना हो, चलेगा। But when you will talk to him, he will get healed emotionally. पर जब आप उनसे उनसे बातचीत करेंगे तो वो मानसिक रूप से चंगे हो जाएंगे। This is what Jesus did. He touched him first. और यही यीशु ने किया। यीशु ने पहले उस कोढ़ के रोगी व्यक्ति को छुआ। So first thing we have learned for ourselves, तो आज हमने हमारे लिए एक चीज को सीखा है that God cares for us beyond our expectation. कि परमेश्वर का संभालना हमारी आशा के परे होता है। But second and important thing we have learned, और जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी है that we need to give that extra care for somebody who is in need. कि हमें उन व्यक्तियों को जिनको जरूरत है प्यार की, जिन्हें जरूरत है उन्हें संभालने की, हमें उन्हें संभालने की जरूरत है। I believe that from today onwards you are gonna do this. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप सब ये करने जा रहे हैं। Just start searching those people, those who are around you, those who are neighbors, colleagues to you. Just go and visit them and give your personal care. आज से जाइए, उन व्यक्तियों को ढूंढिए आपके पड़ोस में, आपके आसपास जो ऐसी समस्या के गुजर रहे हैं। जाइए और उन्हें वो प्रेम दीजिए, उन्हें संभालिए। But it should be male to male and female to female. और पुरुष पुरुष को दे और महिला महिला के साथ ऐसा करे। So it will really work it out. और सच में ये बहुत अद्भुत रीति से काम करेगा। And you will see the changes in their life. और आप उनके जीवन में बदलाव को देखेंगे। You are a representative of kingdom for them. और आप परमेश्वर के राज्य के उनके सामने एक छवि है। Let's start doing it from today itself. आइए आज से ही इसे चालू कर दें। God has called you to be a blessing for nations. परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप बहुत सारे देशों के लिए आशीष बन जाएं। You are not an ordinary person. आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। You can make the difference in somebody's life. आप लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। I believe that it's your ministry and your work is gonna start from today itself. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से ही आपका सेवकाई का कार्य चालू हो गया है। You are very important and anointed people of God. That's why you're having this wonderful opportunity to pray with everybody. आप बहुत अभिषिक्त और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं परमेश्वर के, इसलिए आपको ये मौका मिला कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। Let's touch somebody this morning. आइए आज की सुबह में किसी को तो हम प्रेम से छुए। Let's touch somebody in our day that this difference should come into their life. आइए आज पूरे दिन में व्यक्तियों को ऐसे छुए कि उनके जीवन में बदलाव आए। Your touch is not your touch, it is God's touch for them. आपका छूना आपका नहीं है, पर वो यीशु का उनके जीवन में छूना है। I believe that you will do this. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऐसा जरूर करेंगे। You are God's mouthpiece and you are anointed child of God. आप परमेश्वर के मुख ठहरे हैं और आप परमेश्वर के अभिषिक्त बच्चे हैं। I want everybody should lay his hand on his and on your head and pray for yourself. मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखें और अपने लिए प्रार्थना करें।
Just release a prophetic word upon your life. आइए अपने जीवन पर इस भविष्यवाणी के शब्द की घोषणा करें। Repeat after me. मेरे पीछे दोहराए। I am an anointed child of God. मैं परमेश्वर का अभिषिक्त बच्चा हूँ। I am representative of kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य की इस दुनिया में छवि हूँ। If I'll touch somebody, it will be a touch of God. जब मैं किसी को छूऊंगा वो परमेश्वर का छूना होगा। If I'll speak to somebody who is in problem, God will heal him or her emotionally. जब मैं किसी भी व्यक्ति से जो परेशानी में है, जब मैं उससे बात करूंगा तो परमेश्वर उसे मानसिक रूप से चंगा कर देगा। The world needs me. दुनिया को मेरी आवश्यकता है। And I'll be the Jesus to them. और मैं उनके लिए यीशु के जैसे हो जाऊंगा। Because I'm a child of God. क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। Whatever I will speak, it will heal heal them emotionally. और मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो उनको मानसिक रूप से चंगा करेगा। I prophesy for myself. मैं अपने ऊपर ही इस बात की भविष्यवाणी करता हूँ I will be Jesus to somebody. कि मैं आज किसी के लिए तो यीशु के जैसे हो जाऊंगा। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में मैं इस प्रार्थना को करता हूँ। Amen. Amen. आमीन। Amen. आमीन। I believe that this word has spoken to you. और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन ने आपसे बातचीत करी है। And you will follow this. और आप ऐसा हूबहू करेंगे। May God bless everybody. परमेश्वर हर एक को आशीषित करे। And be a blessing to somebody. और आप दूसरों के लिए आशीष बन जाएं। God bless you and shalom. परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। शालोम। Amen. आमीन।